پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کراچی میں وائی ایم سی گراؤنڈ کی بحالی تزئین و آرائش کے منصوبے کی تکمیل کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آپ کو لیے چلتے ہیں. یہاں آ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک بہتر زندگی کے لیے تیار بھی کر سکتے ہیں. اور کراچی میں ایک ایسا اسپیس ملنا، ایک ایسا جگہ ملنا جو اتنا خوبصورت اور اتنا کھلا ہے، یہ بھی ایک یونیک چیز ہے. I'd like to appreciate the Sindh government's initiative اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ سندھ حکومت جہاں بھی اس قسم کا پازیٹیو کام ہو رہا ہوگا ان کے ساتھ دیکھے اس پازیٹیو کام میں انشاءاللہ تعالیٰ اضافہ کرتا رہے گا. And I look forward کہ سی ایم صاحب مجھے جلد ہی جو ہمارے پیپل اسکوائرز ہے ان کا جو نئے فیزز انوگریٹ ہونے کے لیے تیار ہے ان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو پھر نیکسٹ ٹائم تکلیف دیں گے. تھینک یو. چلو اس کو چھوڑ آواز آ گئی. چیئرمین صاحب، جب سے آپ نے یلکسٹر کا ذکر کیا، آپ نے کراچی کا ایک ایڈمنسٹریٹر بھی اپنی طرح ایک نوجوان لگایا ہے، لیکن جب سے اس کی تعیناتی ہوئی ہے، میں اس کو محبت میں میر کہتا ہوں، تو میر کی جب سے تعیناتی ہوئی ہے، کراچی سے لے کر اسلام آباد تک کھلبلی سی مچ گئی ہے. وفاق کی وزراء اور اس کے جو میں نام نہیں دے رہا ہوں، سمجھ گئے نا، وہ سارے اس پر اتنا برس رہے ہیں جیسے ابھی تک کراچی میں بادل بھی نہیں برسے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ قوتیں بھی ان کو شاید حقیقی خوف ہو گیا ہے جو 40 سال سے آپ کا کراچی میں راستہ روکے ہوئے تھے کہ آپ پہلی مرتبہ واقعی آپ کراچی فتح کرنے جا رہے ہیں اور ان کو خوف ہوا ہے. دیکھو، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے اچھا ایک آبزرویشن تو کیا ہے کہ کیوں اتنا تکلیف اسلام آباد کو اور ہمارے اپوزیشن کی جماعتوں کو ہوتا ہے. اور میرا خیال میں ان کا ایک ہیبٹ بن گیا ہے کہ وہ کراچی کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے اور نہ کسی اور کو کرنے کو اجازت دے رہے ہیں. اور ان کو اس بات کی تکلیف ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دن رات محنت کر رہی ہے، ان کے سازشوں کے باوجود، ان کے ساتھ نہ دینے کے باوجود، کم وسائل کے باوجود، زیادہ محنت کے ساتھ مل کے ہم اپنے محدود وسائل سے کام تو ہو رہا ہے. کراچی میں، پورا صوبہ میں اتنا لمیٹڈ وسائل کے باوجود ہم اپنا محنت بھی جاری ہے اور ساتھ ہم اپنے حقوق کا جدوجہد جاری رکھ رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ناانصافی وفاقی حکومت اس صوبہ کے ساتھ، اس شہر کے ساتھ بار بار کر رہی ہے، وہ عوام کے سامنے ہے، عوام اس کو دیکھ رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کراچی سے لے کے کشمیر تک پاکستان کے عوام پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہی ہے. پاکستان کے عوام سمجھتی ہے کہ ان کے مسائل کا حل اور واحد امید پاکستان پیپلز پارٹی. آپ نے پچھلے دنوں ایک بات کہی کہ الیکشن کی سے تیاری کریں، تو آپ کی جماعت میں اس وقت ریٹائر کرنل جنرل شامل ہو رہے ہیں. اس کا تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ 100 الیکٹورل حکومت بناتے ہیں. تو کیا آپ کو آسرا دیا گیا ہے کہ آنے والی حکومت آپ کی آ رہی ہے یا آپ ابھی سے اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ آپ تو جانتے ہو، آپ اس شہر سے ہو، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست چلتی رہتی ہے. ہم اپنے الیکشن کا تیاری جو ہے مسلسل اس الیکشن تیاری موڈ میں ہوتے ہیں. اور ایک طرف جہاں ہمارا جدوجہد ہوتا ہے، ہمارا پولیٹیکل موبلائزیشن ہوتا ہے، ہمارا تنظیم سازی ہوتا ہے، ہم ساتھ جو ہے ہمارے جماعت میں کراچی سے لے کے کشمیر تک اور جی ہاں کوئٹہ تک جوائننگز ہو رہے ہیں، زور اور شور سے ہو رہے ہیں. نچلی سطح سے لے کے اوپر سطح تک بڑے بڑے لوگ شامل ہو رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی محنت کرتا ہے، جب نیک نیتی کے ساتھ ایک کام کیا جاتا ہے اور عوام نے دونوں باقی جماعتوں کو بھگتا ہے، دونوں باقی جماعتوں کے حکومتیں بھگتے ہیں، تبدیلی کو پہچانا ہے کہ تبدیلی کا اصل چہرہ بے روزگاری، غربت اور مہنگائی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ سارے لوگ پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے ہیں. جہاں تک الیکشنز کی بات ہے، یہ بہت انسٹیبل حکومت ہے، انلیجیٹمیٹ حکومت ہے ہی، لیکن یہ بہت ہی انسٹیبل ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی وقت عام انتخابات ہو سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں. چمر صاحب، یہ میرا سوال دیجیے گا آپ فیملی سے ڈسائڈ. اچھا جنرل صاحب، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان دنوں کراچی میں ہیں اور کل ویسے اے پی ڈی ایم جو اپوزیشن کا اتحاد ہے اس کا اجلاس ہے. ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا پیپلز پارٹی اب تک
APDM के साथ है, जब उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन और APDM को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, और उन्होंने कहा कि वो पीपल्स पार्टी के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पीपल्स पार्टी अब अटैच हो गई है। तो क्या कमेंट करेंगे आप APDM पर? हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब को। हम चाहते हैं और समझते हैं कि यकसा अपोजिशन हुकूमत को नुकसान पहुंचा सकती है। हम समझते हैं कि अगर जमहूरी अंदाज से सियासत किया जाता है तो हम ना सिर्फ नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमने नुकसान पहुंचा के दिखाया है। जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा था, जब तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीपल्स पार्टी की बात मान रही थी, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी अपना रही थी, तब तक ऑपोजिशन मुसलसल जीत रही थी। चाहे वो 11 का 11 बाई इलेक्शंस जो हमारे पार्टी ऑपोजिशन जमातें नहीं चाहते थे कि हम बाई इलेक्शंस में हिस्सा लें, लेकिन पीपल्स पार्टी की बात मानते हुए हमने वो बाई इलेक्शंस में हिस्सा लिया। हमने हुकूमत को शिकस्त दिलवाए। हमने खैबर से लेके कराची तक, पिशीन से लेके फाता तक हुकूमत को शिकस्त दिलवाया और पूरी कौम को दिखाया कि अवाम ऑपोजिशन के साथ है। जब PDM ने पीपल्स पार्टी की बात मानी और वो सेनेट इलेक्शन जिसमें वो हिस्सा नहीं लेना चाहते थे, पीपल्स पार्टी के कहने पे वो हिस्सा लिए, तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने तारीखी शिकस्त हुकूमत को दिलवाई। यहाँ तक कि इस्लामाबाद में अपना सेनेटर को जितवा के हमने मजबूर कर दिया था कि खान साहब अपना अदम एतमाद के वोट ले। अब आगे जाके अगर अपोजिशन सीरियस है, वो हुकूमत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो जाती मुफाद के बजाय, इंडिविजुअल्स की सियासत करने के बजाय हमें उसूलों पे करना पड़ेगा, जमहूरी हथियार अपनाना पड़ेगा। और आज भी मैं समझता हूं कि अगर अपोजिशन सीरियस है, अगर अपोजिशन मिल के अदम एतमाद पहले बुज़दार के खिलाफ फिर इमरान खान के खिलाफ लेकर आते हैं, तो कल हुकूमत गिर जाएगी। हम समझते हैं जो हमारे ऑपोजिशन के दोस्त हैं उनको सोचना चाहिए कि कौन संगीन है हुकूमत को नुकसान पहुंचाने में। क्या वो जो उनको वो तजवीज़ देते हैं जो हुकूमत को नुकसान पहुंचा सकता है, या पहुंचाता है या पहुंचाया है, या वो जो ऐसे तजवीज़ देते हैं जो सिर्फ ऑपोजिशन को नुकसान पहुंचाता है। एक तो वो कहा जा रहा है कि आपकी बारी है, कोई कहीं से ग्रीन सिग्नल मिला है। एक तो ये सवाल, दूसरा सवाल ये है कि आज वज़ीर आज़म कराची में मौजूद थे और कराची के तरक्याती मंसूबों के हवाले से एक ड्राफ्ट रखा गया था। पता नहीं कि वो हुआ कि नहीं हुआ, मीडिया को तो रखा गया है उनकी एक्सपर्टीज से। तो ये कराची के साथ जो वफाकी हुकूमत का रवैया है, सिंध के तरक्याती स्कीमें मुख्तलिफ बंदों में ऐलान की गई हैं, तो आप क्या कहेंगे, क्यों नहीं उन पर अमल दरामद हो रहा है? जहाँ तक ये इशारों की बात होती है, आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो सिर्फ और सिर्फ अवाम के इशारों पे यकीन रखती है और किसी और के इशारों पे ना माजी में चला है, ना आज चल रहा है और ना इंशाअल्लाह ताला कल चलेगा। ये हमारे जो दूसरी जमातें हैं, सारे के सारे 100% इनके इंक्यूबेटर्स और इनके नर्सरी से बने हुए जमातें हैं। तो जब वो पीपल्स पार्टी को सियासत करते हुए देखते हैं तो वो समझते हैं कि उनकी तरह हम इशारों पे चलते हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको कहा है, पीपल्स पार्टी ना माजी में ना इंशाअल्लाह ताला कल पे किसी इशारा पे चलेगा। जहाँ तक हमारे तरक्याती मंसूबे हैं, बजट के वक्त चीफ मिनिस्टर साहब ने पूरे खत पे ऑन रिकॉर्ड लेकर आया था जो नाइंसाफी सीएम साहब और हमारे सूबे के साथ हो रहा है, वो आपके सामने है। जो हमारा NFC का हक है, जो हमारा शहर का हक है, वो हमें नहीं दिया जा रहा है। जो हमारा गिनती सेंसस में होता है वो गलत तरीके से होता है ताकि हमें अपना शहर और अपना हक नहीं दिया जाता। और जहाँ तक तरक्याती ऐलानात वफाकी हुकूमत की तरफ से, हमने भी पिछले बारिशों में और पिछले मानसून के सीजन में ये सुना था कि 1000 अरब रुपीस कराची के लिए कितना
ऐलान किया? 1.1 ट्रिलियन, 1100 अरब रुपया वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया। 1 साल हो चुका है, 1 रुपया नहीं पहुंचा, एक ईंट नहीं लगाया गया, एक कतरा पानी नहीं दिलवाया गया, 1 मेगावाट बिजली नहीं दिलवाया गया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कराची और इस सूबे के अवाम को तकलीफ पहुंचाया है। हम समझते हैं इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत जल्द जा रही है, आने वाली हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी जो अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इरशाद संजरानी बोलियो से बिलावल साहब, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एग्जाइल खत्म करके वापस वतन आई थी तो 18 अक्टूबर को 2 धमाके होते। आप बलूचिस्तान में गए, शमूलियत हुई बड़ी और 2 धमाके होते हैं। ये आपको क्या पैगाम है, किसकी तरफ से पैगाम है, या फौज की तरफ से या फिर तालिबान की तरफ से, क्योंकि आप बार तालिबान पर हमले करते रहते हैं, ये या कौन सा ये मैसेज है? दूसरा, वज़ीर आज़म कराची आए, एक मतलब फिर वज़ीर मुराद अली शाह को नहीं बुलाया, ये क्या तारीखी तबीयत के बाद सूबे के साथ एक तज़ीक नहीं है वज़ीर आज़म? जहाँ तक दहशतगर्दी के वाक़े हैं, वो जी कल परसों क्वेटा में बम धमाके हुए थे। हमने इन दहशतगर्दी के वाक़े के तनकीद भी किया है और मुतालबा किया है कि हुकूमत दहशतगर्दों को अपीस करने के बजाय, नरम रवैया रखने के बजाय, हुकूमत को दहशतगर्दों के साथ नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान को अपनाना पड़ेगा ताकि हम दहशतगर्दी इस पूरे मुल्क से ख़त्म कर सकते हैं और उस खतरा का मुकाबला कर सकते हैं जो हम सब देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल के बाद दहशतगर्दों का अगला निशाना पाकिस्तान होगा। उसको अगर हमने संभालना है तो हमें नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करना पड़ेगा। अफसोस के साथ जो हमारा वजीर आज़म है वो दहशतगर्दी के साथ और दहशतगर्दों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं, दहशतगर्दों को शहीद करार देता है। और वो जो सिपाही, वो जो पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने हमारा शहर कराची से लेके वजीरिस्तान तक अपने जान की कुर्बानी दी है इस दहशतगर्दी का मुकाबले करने के लिए, उनको लावारिस छोड़ा है। हम समझते हैं इस पूरा पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा। जब तक खान साहब अपना पॉलिसी को रिव्यू नहीं करता है तब तक ये दहशतगर्दी का खतरा रहेगा। साहब, जमहूरी जद्दोजहद पर यकीन करने वाली और एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात पीपल्स पार्टी ने कैसे बलूचिस्तान में इक़्तिदार हासिल करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के मोहरों के साथ हाथ मिला लिया? क्या कहेंगे इस हवाले से? क्योंकि आपका तो बिल्कुल चेहरा एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन वो जाने जाते हैं मोहरा इस्टेब्लिशमेंट के, जिन मोहरों को आपने जमात में शामिल किया। तो क्या इक़्तिदार हासिल करने के लिए पीपल्स पार्टी अब कुछ भी कर सकती है? अब मैं एक तो समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी का एंटी नहीं, प्रो पीपल रहा है, और जिसका पॉलिसी एंटी पीपल होगा हम उनके एंटी होंगे, जिनके पॉलिसी प्रो पीपल होगा हम उनके साथ देंगे। जहां तक ये जो आप सब ने कुछ दिनों के लिए मेरे जो लोग शामिल हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, इनको ये गलत छाप इन पे डाला गया है। मैं समझता हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल सनाउल्लाह ज़ेरी साहब की बात कर रहे हो, जब तक वो नून लीग में था तो वो उनके इनकलाब को बलूचिस्तान में लीड कर रहा था, और जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ जाता है तो वो बुरा बन जाता है। ये बड़ा नाइंसाफी है, और मैं समझता हूँ कि जो भी बलूचिस्तान में सियासत करते हैं वो बड़ा मुख्तलिफ अंदाज में सियासत करते हैं एज अपोज टू पंजाब, और पंजाब के तर्जुमान, लाहौर के तर्जुमान को पता ही नहीं है कि खुजदार में और क्वेटा में सियासत करना क्या चीज़ है। सनाउल्लाह ज़ेरी साहब के बेटे को शहीद किए गए हैं, और बड़ा अफसोस की बात है कि जब पीडीएम का जलसा क्वेटा में हो रहा था तो सनाउल्लाह ज़ेरी साहब को और जनरल कादिर बलोच साहब की इंसल्ट हुआ, और उनको उस जलसा में दावत भी नहीं दी गई थी, और यही वजह बना उनकी अपनी जमात का अलीदगी अपनाने से। और हमारे लिए हम समझते हैं कि ये एक नया रास्ता खुल चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, हमारे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं जो इस हुकूमत को हटाना चाहते हैं, जो इमरान खान को भगाना चाहते हैं, और पाकिस्तान को एक पीसफुल, प्रॉस्परस और तरक्की पसंद पाकिस्तान बनाना चाहते हैं।
तो मेरा सवाल आपसे इसमें है कि कराची में इस वक्त 13 साल पूरे दिन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 13 साल की हुकूमत है, कराची के लिए स्पेसिफिक अब आपकी क्या तरजीहात है? क्योंकि न मास ट्रांजिट के मंसूबे मुकम्मल हुए हैं, न फराहमी आपके बुनियादी मसाइल हल हुए हैं, बुनियादी तरजीहात इस वक्त क्या है जो फौरी पे कराची में नजर आए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मास डेवलपमेंट की है? मैं समझता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब और उसकी पूरी टीम की दिन रात का मेहनत आपके सामने है, और जिस तरीके से कराची के हर डिस्ट्रिक्ट में मुफ्त इलाज के NICVD के या चेस्ट पेन यूनिट या हॉस्पिटल पूरा का पूरा बना हुआ है, जगह जगह पब्लिक स्पेसेस, जैसे आज हम इस YMCA में हैं, मगर वैसे पीपल्स पे के कॉन्सेप्ट पे बड़े पब्लिक स्पेसेस बनाए गए हैं कराची में। पानी के मंसूबे में पानी के तादाद में इजाफा करने के लिए जो इक़दामात हब डैम और मुख्तलिफ मंसूबे सिंध हुकूमत ने अपनाए हैं, जिस तरीके से वो वाहिद हुकूमत है जिसने अपना ट्रांसमिशन लाइन सेट करके एक 100 मेगावाट का एक्स्ट्रा बिजली के इलेक्ट्रिक को भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो अपनी मेहनत महदूद वसाइल के बावजूद अपनी मेहनत की नतीजे में कराची के अवाम के मसाइल का हल करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ हम जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमारा सूबा को हक दिया जाए, हमारा शहर को, हमारा कैपिटल को अपना हक दिया जाए, ताकि हम यहाँ के अवाम का मसाइल हल कर सकें। कुछ जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको सेंसस में गिनती कम की जाएगी, अगर आपको NFC अवार्ड में आपको अपना फंड्स नहीं दिया जाएगा और पूरी मुल्क से और पूरी दुनिया से इमिग्रेशन इसी शहर में होगा, तो हमारे पास वसाइल कम होंगे और काम बहुत ज्यादा होगा। मगर पीपल्स पार्टी ने इन कम वसाइल के बावजूद ज्यादा रिजल्ट्स दिखाए हैं, और कराची के अवाम और पूरे मुल्क के अवाम को कह रहे हैं कि अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देंगे, हम इंशाअल्लाह ताला आपको अपना हक भी दिलवाएंगे और आपके मसाइल का हल भी निकालेंगे। चेयरमैन साहब, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि जब आप अमेरिका जा रहे थे तो पूरी हुकूमत मिल गई थी, कोई कह रहा है अपॉइंटमेंट लेने गए, कोई कह रहा है जॉब लेने गए, कोई कह रहा है CV लेने गए। एक तो सवाल ये है। दूसरा ये कि वहां से आपको ग्रीन सिग्नल मिला। तीसरा ये कि जब शेख रशीद आए थे तो शेख रशीद से मैंने सवाल किया कि अगली हुकूमत बिलावल भुट्टो जरदारी की होगी या मरियम नवाज की होगी, तो उन्होंने कहा ये 5 साल भी हुकूमत पूरे करेगी, अगले 5 साल भी हुकूमत जो है PTI की आएगी। तो आप क्या राजी हो गए हैं? जहाँ तक अमेरिका का हमारा ट्रिप की बात है, वो मैंने पहले भी क्लियर किया था, और उस ट्रिप में हमने तो वॉशिंगटन का दौरा किया ही नहीं था। इंशाअल्लाह ताला कुछ महीनों बाद हम वॉशिंगटन का दौरा भी करेंगे, फिर आप इनके चीखे देखें। जहाँ तक शेख रशीद साहब का बयानात है, यही साहब मुशर्रफ का भी वजीर था, उसके लिए भी कहता रहा कि इसका हुकूमत आना है और आता ही रहेगा। और फिर उसी वजीर साहब ने देखा किस तरीके से सदर जरदारी ने, मर्द हुर ने उस मुशर्रफ को भी भगाया, और इंशाअल्लाह ताला हम इस कप्तान को भी भगाएंगे। जनरल साहब, मेरा नाम शब्बीर लाशानी है, सिंधी न्यूज से मेरा वास्ता है। वफाकी सरकार ने पिछले दिनों जो जजायर है सिंध के, उनके हवाले से एक रुकनाजा फैसला किया, ऐलान किया। वो अपनी जगह पे अब MQM की फरमाइश पर सन 71 में जो लोग बांग्लादेश चले गए थे, उनकी छोड़ी हुई जो जायदादें हैं वो यहाँ पर सेटल होने वाले लोगों को देने का फैसला हुआ है। इस फैसले पे आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो भी यकतरफा फैसला लेगा, जो भी फैसला वो इस शहर या इस सूबे के लिए लेंगे, मगर इस सूबे के अवाम को, इस सूबे के हुकूमत को ऑन बोर्ड ही नहीं लेंगे तो वो मुतनाज़ा ही रहेंगे। जहाँ तक MQM की इस हुकूमत में कंट्रीब्यूशन है, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बल्दियाती इलेक्शंस जल्द आने वाले हैं, और कराची के अवाम MQM को और PTI को ऐसे उस इलेक्शन में अपने वोट की ताकत से जवाब देंगे कि जिस महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की सुनामी में इस शहर के अवाम डूब रहे हैं, वो जानते हैं कि ये दोनों जमातों इनके मसाइल की कसूरवार है। अगर कोई हल है, अगर किसी का नियत साफ है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देंगे। चेयरमैन साहब, अजहर अजीज फ्रॉम कैपिटल TV।
पीपल्स पार्टी ने हमेशा कराची में मेयर अपना लगाने की बात की और कहा कि इस बार हमारा मेयर होगा, हमारा नाजिम होगा, लेकिन तारीख में पहली बार सियासी मेयर एडमिनिस्ट्रेटर का तयन किया गया और साथ साथ जो है मुख्तलिफ डिवीजन में कंसल्टेंट भी लगाए गए जो कि बलदियाती अमूर देखेंगे। तो क्या ये तमाम जमातों को क्लियर कट मैसेज है कि पीपल्स पार्टी इस बार संजीदा है और मेयर ज्यादा होगा? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो इस शहर के लिए सियासी या हुकूमती मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है कि हम इस शहर में बेहतरी लेकर आए। और सीएम साहब को जो भी कदम उठाना पड़ेगा हमारा परफॉर्मेंस में इजाफा करने के लिए, हमारा सर्विस डिलीवरी में बेहतर लाने के लिए, उसके पास वो हक है और वो तैयार है कि वो स्टेप्स ले। और मैं समझता हूं जिस तरीके से अब सीएम साहब ने अपना कैबिनेट मेंबर को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है, एक ग्रेड 19 का ऑफिसर का पोजीशन पे बिठा के अपना हुकूमत का सीरियसनेस और इस जमात का सीरियसनेस दिखाती है कि हम क्या अहमियत इस शहर को और इस शहर के अवाम को देते हैं। और जो साथ साथ स्पेशल असिस्टेंट्स जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में सीएम सिंध की तरफ से कोऑर्डिनेशन करेंगे, सीएम सिंध की तरफ से उन डिस्ट्रिक्ट्स में अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे, इस कदम से बेहतरी ही आ सकती है। इस कदम से हमारा मेहनत का बेहतर फल और बेहतर नतीजा निकल सकते हैं। तो हम भी इस फैसले को वेलकम करते हैं। इस सूबे के अवाम ने इस फैसले को वेलकम किए हैं। इस सूबे के कैपिटल सिटी ने इस फैसले का वेलकम किया है। तो इंशाअल्लाह ताला जब आपका नियत साफ होता है और आप एक काम के लिए निकलते हैं, उसका रिजल्ट्स भी निकलते हैं। और जैसे फैसल बाबरा का सीट का बाय इलेक्शन हो, कमारी का बाय इलेक्शन हो या मलीर का बाय इलेक्शन हो, आई थिंक ये अब एक कमेंट नहीं है। ये आवाम चाहे वो कश्मीर के पहाड़ों में रह रहे हो या किमारी में रह रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कराची में YMCA ग्राउंड की बहाली तज़ीन और आराइश के मंसूबे की तकमील की इफ्तिताई तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जो आपने लाइव मुलाहिजा किया।